In this class, we are going to start from nutrition in bacteria. That is, we are going to study various different methods through which bacteria obtain their nutrition or their food. So, bacteria can obtain this nourishment from either by autotrophic or by heterotrophic method. So, as we know that autotrophic method is the one in which an organism synthesizes its own food, and whereas in the case of heterotrophic, any organism which is heterotrophic, we know that it cannot synthesize its own food, and that is those type of bacteria or any heterotrophic organism for that matter will be dependent on any other organism. So there are two types of bacteria on the basis of autotrophic, that is this can synthesize its own food, and heterotrophic, that is it cannot synthesize its own food, it will be dependent on other organisms. So on the basis of autotrophic ability, the bacteria are classified into two categories, and one is the autotrophic, or that is the photoautotrophic, and the other type of autotrophic is the chemoautotrophic. So as we know from the word photo, that is it refers to light energy or radiant energy. So photoautotrophic bacteria are the ones which use radiant energy or electromagnetic radiation or light energy to synthesize their own food. That is, if a phototrophic bacteria or photoautotrophic bacteria wants to synthesize its own food, then it must have sunlight or radiant energy. But in the case of chemoautotrophic bacteria, sunlight is not required. That is, there are certain chemicals because of whose oxidation some energy is released, and this bacteria will synthesize its own food through that energy. So we will see later what about this कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि ये जो कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है ये किन मेथड से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं या कैसे अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. But here we are going to study about the photoautotrophic bacteria. So first of all, these photoautotrophic bacteria will be present and normally at the bottom of the pond, and these will be dependent on light energy for its energy requirement or energy absorption. So let's start this photoautotrophic bacteria. So they can synthesize their own food from inorganic molecules like CO2 and H donor. Now you must have studied about photosynthesis in your younger classes like standard 10th or standard 8. So you know that in a normal plant which does photosynthesis, it does photosynthesis using two chemicals, and the one that is carbon dioxide and the other is the water. So you must have studied about this reaction in your 10th class, that is CO2 plus H2O, glucose plus oxygen plus water. You must have studied about this reaction in your photosynthesis chapter in standard 10th. So for photosynthesis, two things are required. One is CO2 and the other is H donor. So here H donor means a chemical which will give its hydrogen to the carbon dioxide to form glucose. So here water is a hydrogen donor. So it is not necessary that at all places we will use water as a hydrogen donor. There could be other chemicals like hydrogen itself or hydrogen sulfide or sodium thiosulfate or this propanol. So these chemicals can act as hydrogen donor. So here water will not be used as a hydrogen donor. Either of these chemicals, hydrogen or this or this or this, out of these four, any such organic chemical could be used as a hydrogen donor, but water will not be used. That is, like in the case of plants photosynthesis, water is used as H donor, that is hydrogen donor. So plants use water as hydrogen donor, but bacteria, that is this bacteria, does not use water as hydrogen donor. It uses hydrogen or hydrogen sulfide or hydrogen sodium thiosulfate or the propanol. It will use these chemicals as hydrogen donor. So you can see here, so bacteria will synthesize its own food from CO2 and H donor or hydrogen donor. So this is the first point. The other is these are found normally at the bottom of lakes or ponds. So bottom is important over here. It is because at the bottom of the pond or lake oxygen is not available. So that is the condition is anaerobic.
but in the above layers or the upper layers of the pond or near the surface dissolved oxygen would be present. So this bacteria wants anaerobic condition, that is it does not want oxygen to be present in the environment. So it is normally stays at the bottom of ponds or lakes. Why? Because normally the conditions at the bottom is anaerobic, because anaerobic conditions are favorable. ठीक है. Now we will see what chemicals it could use. So it could use sulfur or sulfur related chemicals like hydrogen sulfide or sodium thiosulfate. So these are sulfur containing chemicals, but there is something related to the reduction. As you know that there are certain chemical reactions in chemistry which are called as redox reactions. So in redox reaction, one substance is reduced, that is a substance undergoes reduction and some other substance or some other molecule goes into oxidation or it undergoes oxidation. So this bacteria wants sulfur to be in reduced state, and this bacteria will later synthesize or it will later obtain hydrogen by oxidizing that chemical. For example, here sulfur, then hydrogen is obtained, likewise here this is done and then hydrogen is obtained. So these bacteria want sulfur to be in a reduced state, not in a oxidized state. You will later learn about reduction and oxidation reactions in your chemistry. So that is that there you have to study in very much detail about redox reactions. But here you can only have to remember that sulfur or the other chemicals which are being used in this case, these will be in a reduced state, not in a oxidized state. ठीक है. So अगर हम इन बैक्टीरिया के पिगमेंट्स की बात करें तो आपने प्लांट्स के केस में देखा होगा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल की जरूरत होती है. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में क्लोरोफिल चाहिए होता है. प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो एक पिगमेंट चाहिए और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए पिगमेंट इज मस्ट. तो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. लेकिन इन बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल some other pigments are present. For example, these pigments are bacteriochlorophyll, not the chlorophyll, because this chlorophyll is different and this chlorophyll is different. बैक्टीरिया का क्लोरोफिल और प्लांट का क्लोरोफिल दोनों डिफरेंट होता है. इट्स नॉट द सेम क्लोरोफिल दैट यू सी ओवर हियर, दैट इज इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स. नाउ द अदर इज बैक्टीरियोफियोफाइटिन. So this is also a pigment which is used in photosynthesis, and in green plants you must have studied about something called xanthophyll and carotenoids. So these xanthophyll and carotenoids are present here, that is only the carotenoids, but in the case of plants we will have xanthophyll and carotenoids as pigments. So ये तीनों पिगमेंट जो हैं बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और इन तीनों पिगमेंट की मदद से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है. जैसे कि प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसी तरह जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन या कैरोटीनॉइड की मदद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है. लेकिन ग्रीन प्लांट में और अदर टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए बी करके बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं. और बैक्टीरिया में xanthophyll नहीं होते लेकिन कैरोटीनॉइड्स होते हैं. लेकिन ग्रीन प्लांट्स में xanthophyll भी होंगे और वो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो भी पाए जाएंगे यहाँ पे. सो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द बैक्टीरिया. नाउ दीज पिगमेंट जो होते हैं, ये जो पिगमेंट होते हैं ये थाइलाकॉइड या फिर क्रोमैटोफोर्स में लोकेटेड होते हैं इन द केस ऑफ पर्पल बैक्टीरिया. तो हमने देखना है यहाँ पर कि कुछ डिफरेंट टाइप के फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं. तो 4 तरह के फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हमें पढ़ने हैं. उन 4 टाइप में कौन कौन है? पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर. यानी कि ये 4 टाइप के फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हमें पढ़ने हैं. अब इनमें जो पर्पल बैक्टीरिया है दैट इज पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर, इस केस में जो हमारा
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो थाइलाकॉइड्स में लोकेटेड है या क्रोमैटोफोर्स में लोकेटेड है। तो बेसिकली जो क्रोमैटोफोर होता है एक टाइप का थाइलाकॉइड होता है, लेकिन थाइलाकॉइड का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसे बोलते हैं वेसिक्यूलर थाइलाकॉइड। तो बेसिकली दीज क्रोमैटोफोर्स आर वेसिक्यूलर थाइलाकॉइड्स। तो वी कैन से इट्स आइदर थाइलाकॉइड और क्रोमैटोफोर। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में ये जो पिगमेंट हैं ये तीनों वो कहाँ पाए जाएंगे? तो वो पाए जाएंगे या तो थाइलाकॉइड में या क्रोमैटोफोर्स में। लेकिन ग्रीन बैक्टीरिया के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लोरोसोम्स। तो ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि ग्रीन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर, इन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लोकेटेड होते हैं क्लोरोसोम्स में। ये दोनों स्ट्रक्चर है, यानी कि पर्पल बैक्टीरिया में थाइलाकॉइड या क्रोमैटोफोर्स में लोकेटेड होंगे पिगमेंट, और ग्रीन बैक्टीरिया में नॉर्मली जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोसोम्स में लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर द पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज और पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंट होते हैं दैट इज द क्लोरोफिल, ये लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। 9th क्लास में या फिर उसके आगे आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम। तो इसी तरह क्लोरोफिल को कंटेन करने वाला सेल ऑर्गेनल को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, लेकिन बैक्टीरिया में ये जो पिगमेंट है वो थाइलाकॉइड, क्रोमैटोफोर या क्लोरोसोम्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर द pigment containing structures in the case of bacteria. Now we come to the next point. अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि है एनऑक्सीजेनिक। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्रीन प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पे हम प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करेंगे, भले ही यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है, बट स्टिल वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दिस मच अबाउट दिस प्लांट फोटोसिंथेसिस। वी आर गोना टॉक अबाउट ग्रीन बैक्टीरिया और द पर्पल बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस। तो इन बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर हमने ऊपर ही देखा कि हाइड्रोजन डोनर वाटर को यूज नहीं करेंगे। वाटर हाइड्रोजन डोनर हो गया प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पर ये सब हाइड्रोजन डोनर्स हैं। हाइड्रोजन अगर फ्री हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फेट, and this chemical is called as propanol. So you must have studied about alcohols in your standard 10th. तो इन केमिकल्स की मदद से बैक्टीरिया हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकता है। सो यू कैन सी हाइड्रोजन हैज बीन ऑब्टेन्ड हियर, लाइकवाइज यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑब्टेन किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, इन केमिकल्स की मदद से हाइड्रोजन ऑब्टेन किया है। लेकिन प्लांट्स के केस में कुछ ऐसा होता है, ग्रीन प्लांट्स में कुछ ऐसा होता है। तो ग्रीन प्लांट्स के केस में हाइड्रोजन वाटर से आता है। सो दिस इज व्हाट इज अकरिंग इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी कि वाटर के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर इन सब चीजों के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। सो कंपेयर इट विद प्लांट्स, तो प्लांट्स में क्या हो रहा है, वाटर को ब्रेक डाउन करके हमने क्या ऑब्टेन किया है, हाइड्रोजन ऑब्टेन किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ है इन केमिकल्स के ब्रेकडाउन से हुआ है। सो वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से ये जो ऑक्सीजन निकला है ना, ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो यहाँ पर प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इसीलिए रिलीज होता है क्योंकि वहां पे वाटर का स्प्लिटिंग या वाटर का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन यहाँ पे तो वाटर का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है बैक्टीरिया में, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि
बैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। आगे हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया एक अलग कैटेगरी है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एक कैटेगरी आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के केस में हम देखेंगे कि वहां पे रिलीज होगा ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे इन सब बैक्टीरिया में यानी कि ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में नहीं रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो इसे हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक। और एनऑक्सीजेनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर का तो ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है, तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वाटर से ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है। सो इन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें हम सीधा हाइड्रोजन का यूज करेंगे, जो कि इन सब मेथड से यूज होंगे। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बैक्टीरिया का ये वाला है। दिस रिएक्शन इज द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। दिस इज द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो आपने अपने यंगर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये जो होता है ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। स्टैंडर्ड 10th में भी आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। तो इन प्लांट्स जो कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से हल्का सा डिफर करता है, उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर आ गया और इसके स्प्लिटिंग से यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा। लेकिन बैक्टीरिया में क्या हुआ, इनके स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आया और उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर दिया गया और उससे बन गया ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया में भी ग्लूकोज बन रहा है, प्लांट्स में भी ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, लेकिन बैक्टीरिया में ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है। सो दिस इज यूनिक इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो ये कहाँ हो रहा है, प्लांट्स में रिलीज हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया में एज यू कैन सी देयर इज नो ऑक्सीजन व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड। So that is why we call bacterial photosynthesis, or in this case purple or green bacterial photosynthesis, we call it anoxygenic, because we are not obtaining any free oxygen. But in the case of plants it is called as oxygenic. And also in the case of cyanobacteria, which we will study later in our future classes, but in the case of cyanobacteria the oxygen will be released, but here it will not be released. So in the case of cyanobacteria and plants we will see that these are oxygenic. तो ऑक्सीजेनिक है यानी कि साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस है वहां ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, लेकिन इन चारों टाइप के बैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक नहीं होगा। और वंस बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस ग्लूकोज, तो इसके बाद बैक्टीरिया इससे बाकी चीजों को सिंथेसाइज कर सकती है। तो बैक्टीरिया जो है सबसे पहले ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, और ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल होता है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल हो गए, अदरवाइज उससे वो बहुत सारे केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकता है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो बाकी चीज़ भी नहीं सिंथेसाइज हो पाएंगे। तो इसीलिए जब ग्लूकोज बन गया तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, फोटो ऑटोट्रोफिक। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन में क्या जरूरी है, लाइट। लाइट के साथ साथ ये जो पिगमेंट्स हमने पढ़े हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफाइटिन या फिर कैरोटीनॉइड्स, तो यहाँ पर पिगमेंट्स भी जरूरी हैं। लाइट के साथ साथ यहाँ पिगमेंट्स भी चाहिए। सो लाइट और पिगमेंट्स, यानी कि लाइट इसमें क्यों मिले, क्योंकि पॉन्ड्स और लेक्स में है ना, तो पॉन्ड्स और लेक्स तो बहुत ज्यादा डीप होते नहीं है सी की तरह या ओशियन के जितने, तो पॉन्ड्स और लेक्स डीप होते नहीं है, तो इसीलिए इनमें लाइट पहुंच जाता है और यहाँ पे लाइट की मदद से ये अपने प्रोसेसेस को अंजाम दे देते हैं। सो दिस इज हाउ बैक्टीरिया परफॉर्म। और प्लांट्स के केस में भी लाइट चाहिए होता है, तो सनलाइट के अलावा क्लोरोफिल भी चाहिए। तो प्लांट में लाइट हो गया, बैक्टीरिया में भी लाइट चाहिए। प्लांट में पिगमेंट क्या था, क्लोरोफिल, और बैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन और कैरोटीनॉइड्स। सो दिस इज हाउ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस डिफर, दैट इज इन द पिगमेंट एंड वेदर द ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड और ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग रिलीज्ड. So now we have completed this photoautotrophic bacteria. So we also have to study another, that is chemoautotrophic bacteria. So now we will start chemoautotrophic nutrition in bacteria.